کا بڑا حصہ کیٹیکسٹ کی تربیت کے لیے وقف کیا، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پر ان کے روشن کیے چراغ موجود نہ ہوں۔ ان کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے، اس لیے میں ایک شعر ان کی نثر کروں گا۔ کلا ہووے تے دکھاں دے کھولے گنجل، کلا ہووے تے دکھاں دے کھولے گنجل، وچ محفل دے باغ بہار بندا، جتھے جھوٹ تے سچ دا ہووے جھگڑا، جتھے جھوٹ تے سچ دا ہووے جھگڑا، اوتھے تیر تے تکھی تلوار بندا، دان دئیے جے لکھاں جگراتیاں دا، دان دئیے جے لکھاں جگراتیاں دا، تا جا کے ایک فنکار بندا، خالی شہرت دا نام نہیں فن نازش، خالی شہرت دا نام نہیں فن نازش، رت جگر دا دئیے تے شاہکار بندا۔ تو آپ سب کی ایک بار پھر بھرپور تالیوں میں پروفیسر مشتاق اسد، زوردار تالیوں کے ساتھ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آئیے پوری عقیدت کے ساتھ اور پورے دل سے اور روح کے ساتھ پاک ماں مریم کے حضور سلام پیش کریں، تاکہ ہمیں کلام کی برکت مل جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوکا نے پاک ماں مریم کی سب سے بڑی صفت اور خوبی جو نوٹ کی ہے وہ ہے کہ وہ کلام پاک کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا۔ وہ رشتہ یعنی کلام کو سننا، اس کو حفظ کر لینا، پھر اس کو دل میں رکھنا اور اس پہ غور و خوض کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلام کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے، اسی وجہ سے کلام نے ان کو اپنے اندر بڑی جگہ دی ہے اور انہوں نے کلام کو اپنے اندر بڑی جگہ دی ہے۔ نہ اس کے ہاں کلام کی کمی ہے، نہ کلام کے ہاں اس کی کمی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کلام میں اس کی جگہ نہیں، اس نے کلام نہیں دیکھا، اور جس نے کلام نہیں دیکھا اس کو وہ نظر نہیں آئی، اور جس نے اس میں کلام نہیں دیکھا اس نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کلام کے لیے اس کے ہاں بڑی جگہ ہے اور کلام کے اندر اس کے لیے بڑی جگہ ہے۔ دونوں نے اپنے اندر بڑی جگہ رکھی ہوئی ہے، بس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ جو جسم، جو بدن کلام کے ساتھ پلا ہوا ہو، جس نے دل میں کلام کو رکھا ہوا ہو، جس کا گوشت پوشت اور سارا وجود کلام کے ساتھ پروان چڑھا ہو، وہی جسم کلمے کو جسم دے سکتا ہے، کرنا کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں وہ کلمہ کی امّا، کیونکہ یہ کلام کے ساتھ پلا ہوا جسم ہے جو پھر کلام کو جسم دیتا ہے۔ اس لیے اس باریکی کو، وہ جو گہرا رشتہ ہے، اس کو یاد کیجئے اور سلام پیش کیجئے۔ کلام کی سمجھ خود آ جائے گی، اور جنہاں نو نہیں اجے تک آئی وہ بھی آ جائے گی۔ صرف سلام کہہ دیجئے دل کے ساتھ، باقی سب کچھ قدرت نے اس کے اندر رکھ دیا ہوا۔ آئیے عقیدت سے سلام پیش کریں۔ سلام مریم، اونچی آواز سے کہیے، اونچی آواز سے کہیے۔ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اور ایک سلام آپ سب کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، کیونکہ اگر خاندانوں میں اس کے قدم آئیں گے تو برکت آئے گی، خوشیاں آئیں گی، خوشحالی آئے گی، رونق آئے گی۔ اس لیے آپ صرف سلام پیش کریں گے، باقی قدم خود آئیں گے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خاندانوں کے لیے اور گھرانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو کرائسس میں ہے یہی ہے
ताकि माँ मरियम के कदमों की बदौलत हमारे ख़ानदानों के अंदर रौनक आ जाए। सलाम मरियम। पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है। वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है। आग पानी मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। असद में अकेला ही नहीं मरियम से शुरू करता, यहां तो खुद खुदा मरियम से शुरू करता है। हाँ तो खुद खुदा मरियम से शुरू करता है। इसलिए कि जब उसने नई कहानी, नया अहद और नया जिसको नया ड्रामा कहते हैं, नई इंसानियत शुरू की तो उससे शुरू किया है। बस उसने आदम से भी शुरू करके देख लिया कि सब लड़ते हैं। उसने फिर औरत से शुरू किया और देखा कि एक न्यू सिविलाइजेशन तब शुरू होती है जब ये इंसानियत मरियम से शुरू हो। एक नया समाज तब शुरू होता है जब मरियम से शुरू होता है। इसलिए उसने नए अहद को मरियम से शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि जब जो कुछ उससे शुरू किया है वो एक सलाम के साथ शुरू हुआ है। और आपको पता है कि हमारे, मैं इससे पहले कि आगे जाऊँ, मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम फादर साहबान और जितने यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर इधर ही मौजूद हैं, अगर कोई उधर भी हैं तो फिर भी, और सिस्टर साहबात, मुबशरान इंजील और सारे जितने भी खादम उसके इधर बैठे हुए, जितने मेरे दोस्त और साथी और बहन भाई बुज़ुर्ग जो दूर नज़दीक से आए हुए हैं, आप सबको पाक माँ मरियम की मोहब्बत में सलाम पहुँचे, जो आज उनके तीसरे रूहानी इज्तिमा में सालाना जो है उसमें तशरीफ़ लाए हैं। और मैं, सही बात है, आप बहुत बड़े महान हस्तियाँ, मैं तो सिर्फ सलाम ही पेश कर सकता हूँ और अगर आपके बारे में बातें करना शुरू करूँ बहुत टाइम लग जाएगा। आप मेरे लिए बहुत मोतबर हैं और वाजिबुल एहतराम हैं और सही बात है दिल में रहते हैं, क्योंकि आपकी खिदमत की बदौलत ये फूल और फल लगे हुए हैं। खुदा आपकी खिदमत को और दुबाला करे। आप जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की विलादत हुई तो एक नगमा उतरा, एक नगमा। और नगमा क्या था? फरिश्ते लेकर आए और वो भी चरवाहों के दरमियान। और जब चरवाहों पे फरिश्ते उतरने लगे तो समझ आती है बात बहुत बड़ी है, बात अजीब है और गरीब भी है, नई भी है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जानवरों के संभालने वाले हों और उनके साथ फरिश्ते हम कलाम हो, और वो भी गीत लेकर आसमानी लश्कर गीत लेकर आए। और ये था आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक इरादे और नेक नीयत इंसानों के लिए सलामती, नेक नीयत आदमियों के लिए सलामती। सही बात है, अगर कोई इस नेक नीयत को समझ जाए, नेक नीयत को दूर तक समझे, तो उसको एक नुक्ते की ज़रूर समझ लगनी चाहिए, बाकी की लगे या ना लगे। नेक नीयत उसको कहते हैं जिसके दिल में मुआफ़ी का जज्बा हो। जिसके दिल में मुआफ़ी का जज्बा ना हो उसकी नीयत नेक नहीं होती और नेक नीयत भी नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि सलामती उनके लिए जिनके इरादे नेक हैं, जिनकी नीयत नेक है, इसलिए उनके लिए ये सलामती उतरी है। मैं फिर दोबारा, आप हमारे लिए बहुत मोतबर हैं क्योंकि जमात के सरदार भी हैं, हमारे भी सरदार हैं। मैं समझता हूँ नेक इरादे, नेक नीयत और वो जो जितने भी आपका इरादा नेक है। मैंने लिखा, सुनिए, माफ़ कौन कर सकता है? माफ़ कौन कर सकता है? जिदे दिल विच रब वसदा है। माफ़ कौन कर सकता? जिदे दिल विच रब वसदा। फिर दोबारा मैं कहता हूं, माफ़ कौन कर सकता है? तुसी आखो जिदे दिल विच रब वसदा है। आखो जिदे दिल विच, बस ऊंची आवाज से, जिदे दिल विच, बस वो उसके दिल से मुआफ़ी निकलती है, उसके दिल से, क्योंकि उसके दिल में मुआफ़ी का समंदर, मुआफ़ी का दरिया बहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पैदा हुआ तो उसकी पहली आवाज़ जो आई, जो सुनाई गई, वो थी ज़मीन पर सलामती, ज़मीन पर सलामती।
اور جب وہ اپنا سفر مکمل کر چکا تو پھر جی اٹھنے کے بعد اپنے رسولوں پر ظاہر ہوا تو پہلا لفظ جو ان کو دیا، پہلا گفٹ جو ان کو دیا، پہلی بات چیت جو ان کے ساتھ ہوئی، وہ پہلا کیا تھا؟ سلامتی تمہارے ساتھ، سلامتی تمہارے ساتھ ہو. یعنی جس کی ولادت پہ سلامتی اور جس کے جی اٹھنے پر سلامتی، یعنی سفر کا آغاز بھی سلامتی اور سفر کا انجام بھی سلامتی. یہ سمجھیے کہ وہ جس کی ابتدا بھی سلامتی، جس کی انتہا بھی سلامتی، وہ کہاں سے؟ اسی لیے سمجھیے کہ جب اس کی اماں کو کہا گیا سلام ہے پرفضل، تو سلامتی کا آغاز ہو گیا، سلامتی کا آغاز ہو گیا. اسی لیے جب اس کو پرفضل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے ہاں سلامتی نہیں تو پرفضل بھی نہیں ہو سکتی. یا سمجھیے اس نے جو دنیا کو دیا ہے وہ سلامتی دی ہے، کیونکہ بی بی نے جو عدن میں دیا تھا وہ سلامتی نہیں تھی، جو عدن میں دیا تھا وہ سلامتی نہیں تھی. بی بی نے جو کچھ عدن میں کیا تھا وہ سلامتی نہیں تھی. اس کے جواب میں مریم نے جو کیا وہ سلامتی تھی. کیا تھی؟ سلامتی تھی. اس نے جو بانٹ دیا وہ سلامتی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لکھا، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ مریم کا ذکر ہونا کشف نزول ہونے کی ضمانت ہے. مریم کا ذکر ہونا کشف نزول ہونے کی ضمانت ہے. معاف کیا کرو خدا کی بادشاہی کے حصول ہونے کی ضمانت ہے. معاف کیا کرو خدا کی بادشاہی کے حصول ہونے کی ضمانت ہے. مسیح کے نام سے دکھ سہتے ہو، یہ تو رسول ہونے کی ضمانت ہے. مسیح کے نام سے دکھ سہتے ہو، یہ تو رسول ہونے کی ضمانت ہے. اور سلام مریم صرف دعا نہیں اسد، یہ تو دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے. یہ تو دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے. مخیسا ماں مریم دے نادی، مخیسا ماں مریم دے نادی، مخیسا ماں مریم دے نادی. اس کی مہربانی کرو بہت. ہاں جی یہ ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے. یہ سمجھیے اچھی طرح کہ جو ہمارے سامنے کلام پاک سے پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت. آپ نے کبھی یہ سنا تو ہوگا کہ ہر مذہب کے اندر، ہر کلچر کے اندر اور ہر ایک وہ جو تہذیب ہے اس کے اندر یہ انسان خدا کو تلاش کرتے آئے ہیں. یار یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ کی آواز بہت لٹک کے جاتی ہے. ہاں جی مہربانی اس کا ایکو ختم کر. اچھا یہ جو ہے نا تلاش کرنے والے، خدا کو تلاش کرنے والے اور خدا کو ڈھونڈنے والے، یہ بڑے، کوئی دریا پہ گیا، کوئی پہاڑوں پہ گیا، کوئی کہیں گیا، خدا کو تلاش کرنے والوں نے پورا زور لگایا. اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں نے خدا کو تلاش کرنا ہے، میں نے خدا کو ڈھونڈنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے زمین چھان ماری اور پتہ نہیں کدھر کدھر کوئی کام کیا، کوئی پانیوں میں، کوئی ہواؤں میں، اس درختوں پر خدا ڈھونڈنے والے، خدا کو تلاش کرنے والے یہ بہت ہوئے. پتہ نہیں لبیا کہ نہیں، لیکن ڈھونڈنے والے بہت ہوئے. کئیوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے ڈھونڈ بھی لیا. کافی ہوئے ہر مذہب میں، ہر جگہ پر، ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں. لیکن ایک شخص نے ایسا بھی خدا پیش کیا. اس نے کہا ارے انسانوں تم کیا خدا کو ڈھونڈو گے، خدا تمہیں خود ڈھونڈ رہا ہے، خدا تمہیں خود تلاش کر رہا ہے. اور اس طرح تلاش کر رہا ہے جیسے کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا. یہ فرق ہے انجیل میں اور باقیوں میں کہ تم خدا کو ڈھونڈتے ہو لیکن تمہارا خدا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. اور کیسے ڈھونڈ رہا ہے، کاش تمہیں پتا چل جائے کیسے ڈھونڈ رہا ہے. تو ریئلی دیکھنا، اس نے بتایا یہ لوکا 15 باب میں بتایا کہ کیا کرتے ہیں. لوکا 15 باب میں
बताया 3 तमसीलें हैं उसके अंदर। एक तमसील है खोई हुई भेड़ की, दूसरी तमसील है खोई हुई भेड़ की नहीं, खोए हुए दिरहम की, और एक दिरहम गुम हो गया, एक भेड़ गुम हो गई। ये दोनों पहली तमसीलें, इनके अंदर बताया गया है कि जिदी गुआच जाए फिर लभदा किवे में, जो जिसकी गुम हो जाए वो ढूंढता कैसे है, जिसकी गुम हो जाए वो ढूंढता कैसे है, बताया गया। भेड़ खो जाए तो चरवाहा उसको ढूंढेगा, हर तरह से ढूंढेगा, और कब तक ढूंढेगा? जब तक मिल नहीं जाती, जब तक मिल नहीं जाती। कोई हद नहीं है, कोई ये नहीं टाइम मुकर्रर नहीं, बस मेरा आखिरी हदफ और मेरी मंजिल ये है कि मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, बस। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसके लिए खा कितना वक्त लग जाए, ढूंढ के लाऊं। इसलिए नहीं बताया कब तक ढूंढेगा, ढूंढता रहेगा, और जब मिल जाए तो उसको उठा के ले आएगा और खुशी मनाएगा। पता है क्यों तमसीलें पेश की? सारे लोग कहते थे ए गुनाहगारां नाल क्यों बहिंदा है, गुनाहगारां नाल क्यों खांदा है, और गुनाहगारां दा दोस्त क्यों है, उन्हां दा यार क्यों है। इसीलिए यही तो मुसीबत थी, इसीलिए सबको चुभता था कि गुनाहगारों के साथ इसका उठना बैठना क्यों है, और गुनाहगारों के साथ इसकी मीटिंग क्यों होती है, ये गुनाहगारों के लिए दरवाजे क्यों खोलता है, बस ये तकलीफ। और उन्होंने फिर इसके लिए जवाब दिया कि ये किसी की भेड़ खो जाए तो क्या वो ढूंढेगा नहीं? फिर क्या किसी का दिरहम गुम हो जाए बीबी का तो क्या वो कब तक ढूंढेगी? चिराग लेकर, झाड़ू लेकर सारा अंदर सारा फूल ये ढूंढेगी, और जब तक ना मिले वो कोशिश करती ही रहेगी। सच्ची बात है, दोनों तमसीलों से ये दिरहम ढूंढने वाली और भेड़ खोई हुई भेड़ ढूंढने वाला, अगर इसकी तलाश को देख लो, अपने खुदा की तलाश को देख लो, खुदा की, मैं कहता हूं अपने खुदा के तलाश करने का इश्क देख लो, तो अड्डा पी गुआचन नु दिल करे, क्या मैनू लभते सही ऐसे ढूंढने वाले और इस तरह ढूंढने वाले, मेरा दिल करता मैं गुआच जा, एक बार आके मैनू लभते सही। क्यों? क्योंकि तेरे ढूंढने में इतनी कशिश है, तेरे ढूंढने में ऐसा इश्क है, ऐसी मोहब्बत है। और इसीलिए उसने कहा जब ढूंढने वाले के इश्क का पता चल जाए तो तीसरी तमसील में चापी गुआचन नु दिल करता है। तीसरी तमसील में खुद गुम होने को जी करता है, मुंडा आंदा लिया मेरा हिस्सा कट, गुआचन नु दिल करता है, गुआचन नु दिल करता है, क्योंकि ऐसा ढूंढने वाला, ऐसा इश्क मैंने देखा नहीं। इसीलिए यह था उसका मरकज, इस इंजील का मरकज, कि अगर तुझे पता चल जाए तेरा खुदा तुझे प्यार कितना करता है, तेरी मोहब्बत कितनी करता है, ये गुनाह नहीं देखता, तुझे देखता है, तू कंडीशन देखता है। तू जदों भी किसी ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ गुनाह ਕੀਤਾ कि ਇਹਦੀ मां ने ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ गुनाह ਕੀਤਾ कि ਇਹਦੇ ਪਿਓ ने ਕੀਤਾ। हमने पहली नजर ही ये रखी हुई है, इसलिए जब भी देखते हैं उनको गुनाह की नजर से देखते हैं। उसने किसी इंसान को गुनाह की नजर से नहीं देखा, उसने गुनाह की नजर से नहीं देखा, अपनी नजर से देखा है। इसीलिए शमा उनको कहा यह गुनाह की नजर नहीं है, गुनाह पर फतह पाने वाले की नजर है, उस नजर से देखा है, उस नजर से देखा है। जब उस नजर से देखा, यह नजर ही और है। इसीलिए कहा शमाउन, ये बीबी वो जो शमाउन के घर में दावत थी ना, शमाउन ये जो जिसने रोटियां पकाई हुई थी, दावत की हुई थी, उसके घर में दावत थी और गए खाना खाने बैठे। बीबी आई और आकर उसके पांव के पास खड़ी होकर रोना शुरू किया, आंसू बहाए। ड्रामा नहीं हो रहा, ड्रामा नहीं हो रहा, हम लोग ड्रामे करते हैं, उधर ड्रामा नहीं हो रहा, आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कदमों तक पहुंचना हर किसी के बस के रोग नहीं। वो पहुंच गई, बस जिसका इश्क हो, जिसका दिल हो और जिसका अंदर जिंदा हो, जिदे अंदर रब वसदा है। गुनाह की बात नहीं है, यह नजर की बात है, यह नजर की बात है। कोई रह गुजर में रह गया, कोई मंजिलों पे मर मिटा, कोई मंजिलों से निकल गया, ये नजर की बात है। ये हर एक नजर की बात नहीं है, किसी नजर की बात है। इसलिए मैंने कहा कि वो मंजिलों से निकल गया। ये मंजिल क्या चीज है? मंजिल तो हमारी जेब में है। इसीलिए जिस वक्त ये बीबी उधर जाकर खड़ी हो गई, मर्दों के दरमियान, मर्द सारे बैठे हो खाना खा रहे हैं, वह पीछे खड़ी हो गई और इतनी जुर्रत, बस रो लेने की जुर्रत है। और सबसे बढ़कर ये 2 वजह हैं जो आंसू निकल रहे हैं। एक तो ये अपने आप को देखती हूं तो रोना आता है,
अपने आप को देखती हूं तो रोना आता है, और दूसरा जब इसको देखती हूं, इसकी वुसअत को देखती हूं और इसकी हस्ती को देखती हूं और इन पांव को देखती हूं तो रोना आता है। एक दुख से रोना आता है, एक खुशी से रोना आता है। मसीह के पास आने की खुशी है तो रोना आता है, और अपने आप का दुख देखती हूं तो रोना आता है। अरे आंसुओं से पांव को धो डाला, आंसुओं से पांव को धो डाला, फिर अपने बालों से पूंछ डाला, अपने बालों से पूंछ डाला, फिर अपना इतर तोड़कर उसको मसा कर दिया। इतना बड़ी मोहब्बत और किसने देखी होगी। लेकिन उस्ताद ये जिन्ना गुनाह वेख्या ना, सिर्फ बंदे नु नहीं वेख्या, इंसान को नहीं देख, इंसान को देखने की नजर, इंसान को देखने की नजर है। हमने सिर्फ उसका कवर देखा है, हमने सिर्फ लिबास देखा है, लिबास के अंदर नहीं देखा। इसलिए हमने इंसान से नहीं मिले और लिबास से मिल रहे हैं। हम सिर्फ उसकी वजाकता से मिल रहे हैं, हम सिर्फ उसके सोशल और स्टेटस और ये से मिल रहे हैं, इसलिए इंसान से नहीं मिले। और वो है जिसको उसने मसा किया तो पता चल गया कि फरीसी ये शमाउन इस पे नागवार गुजरा है, इस पे नागवार गुजरा है, इसको अच्छा नहीं लगा और दिल ही दिल में कहता है जे नबी हुंदा ते इहनू पता लग जाना सी, ए ते सिरे तो नबी ही नहीं, इहनू पता ही नहीं लगा भी मैनू कौन छूण दिया कि मैनू केड़ा हथ लाण दिया। इहनू पता हुंदा, इहनू समझ लग जांदी किस करैक्टर दी बीबी है, किस करैक्टर दी बीबी है। अरे तू करैक्टर वेंदा रहो, हाँ जी, तू करैक्टर देखता रहे, वो सूरत देखता है, क्योंकि जिसकी शक्लो सूरत पे है उसको देख, उसकी नजर से देख, फिर तुझे नजर आएगा कौन है। इसलिए तूने सिर्फ करैक्टर सिर्फ देखा है और करैक्टर की वजह से पकड़ा गया। वो कहता है ये बीबी इन्हां असा पहलू फैसला किया है साडा करैक्टर चंगा है ते दूजियां दा माड़ा है, साडा करैक्टर चंगा है ते दूजियां दा माड़ा है। जिन्ना पहलू फैसले करके रखे हुए ने वो बस इसी तरह पकड़े जाते हैं और बार बार ये कहती है इन्हू की पता होवे ये किस किरदार दी बीबी है। लेकिन सही बात है, हमारे खुदावंत को पता चल जाता है उसके मन में क्या, उसके दिल में क्या। तेरे बाहर का भी पता है, तेरे अंदर का भी पता है। तू सिर्फ बाहर को जानता है, अंदर को नहीं जानता। इसलिए कहा शमाउन मुझे तुझसे कुछ कहना है, शमाउन मुझे तुझसे कुछ कहना है, शमाउन मैं तेरे ना गल करनी है। उसने कहा कीजिए कीजिए उस्ताद। उन्हें आख्या गल सुन, किसी ने कर्जा देने, दो कर्ज कहा सन, दो कर्ज देने वाले उन्हां चों एक ने कोई 500 दिनार दे, 500 कंतार और एक ने 50 देने ने। बस उन्हें की कीता, बस हमारे खुदावंत की जुबान देखो तो तुम सब समझ जाओगे। उसने ये तमसील नहीं सिर्फ पेश की, उनकी भी पेश की, जिसके 1000 हाँ 10,000 कंतार मुआफ हुए और वो भी वो पता लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसने उनको बख्श दिया। क्या बख्श दिया? क्या लफ्ज है? बख्श दिया, बख्श दिया। ये लफ्ज याद रखना, बख्श दिया। बख्शना आना चाहिए, बख्शना आना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना हमारे कसूर में बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को बख्श, ये वाला वो बख्श दिया लफ्ज इस्तेमाल करते जानबूझकर। तरला करदा आंदा है मैनू देण दी हिम्मत नहीं, मैं कर्जा वापस नहीं कर सकता, बस मेरे ते सबर कर, कुछ थोड़ा जा वक्त और दे, मैं अदा कर देंगा। सबर कीजिए। लेकिन पता क्या जवाब मिलता है? तुम सबर मांग रहे हो, उसने वैसे ही बख्श दिया। कहने लगा कोई बात नहीं, तेरी आरज़ू इतनी है, इधर से बख्शिश का दरिया बड़ा है। कहने लगा तूने सिर्फ मोहलत मांगी है, मैंने तुझे बख्श दिया। और इसे भी बख्श दिया, 500 वाले को भी बख्श दिया, 100 वाले को, 50 वाले को भी बख्श दिया। और सवाल किया शमाउन मुझे बता कौन ज्यादा प्यार करेगा? वो कहने लगा जिसे ज्यादा बख्श दे, जिसे ज्यादा बख्शा गया। और अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब इस वक्त तक बीबी को नहीं देखा था, इस वक्त तक अब ये अपने कुर्चेयर को पलटकर, अपना तरफ को पलटकर बीबी की तरफ ध्यान करके और फरीसी को कहने लगा अच्छी तरह आइंदा नजर रख, आज तू पहले अपनी नजर से देखता था, मेरी नजर से इसको देख, मेरी नजर से देख और फिर तुझे पता चले कि कौन है ये। कहने लगा मेरी नजर से देख, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव के सर के लिए पानी नहीं दिया, तूने धुलाई के लिए पानी नहीं, इसने आंसुओं से मेरे पांव भिगोए और तूने कोई टॉवल वगैरह नहीं दिया जिससे मैं पूंछ लेता। हाँ जी, इसने अपने बालों से बालों का टॉवल बना दिया। और फिर कहने लगे तूने मेरे सर के लिए भी तेल नहीं दिया, इसने मेरे पांव को। अरे बीबी ने क्या अप्रोच लड़ाई है, अप्रोच देखिए।
अरे लोग सर की तरफ जाते हैं, लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और लोग समझते हैं ये जो कुछ इधर है उस पर जाते हैं, लेकिन बीबी ने फैसला किया कि जब रिश्ता जोड़ा तो कदमों से जोड़ा। अरे क्यों? क्योंकि जब सीखती थी तो पांव के बैठकर सीखती थी, और जब आपको पता है जब भाई मार गया लाजरस तो फिर भी कदमों में जाकर कदमों में लग के कहा अरे कदमों के साथ रिश्ता ही पक्का कर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आज हो या उस वक्त हो, आज भी जब इंसान के दिल तक पहुंचना हो, आज तो मेडिकल ने भी बता दिया है, आपका जो एलोपैथी वाला उन्होंने बता दिया। अरे जब ये एंजियोप्लास्टी वगैरह करते क्या करते हैं? अरे भाई दिल तक पहुंचना हो तो दिल के रास्ते जाया जाता, फिर पांव के रास्ते जाया जाता है। इसलिए अगर दिल तक पहुंचना है तो पांव के रास्ते जाया जाता है। इसलिए जब पांव को छुआ तो दिल तक पहुंच गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, उसने कहा बीबी, ये मैं आपको बताऊं, इस बीबी ने जितना ईमान इसके अंदर है इसकी वजह से, उसने कहा बीबी तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। ऐसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा जो कॉन्फिडेंस देता हो। क्या देता हो? कॉन्फिडेंस देता हो, इत्मीनान देता हो, एक कॉन्फिडेंस देता है कि तेरे ईमान ने, मैं कख नहीं किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा, सलामती तेरा हक है, सलामती इधर से निकलेगी। क्योंकि अरे भाई लोगों के पास जो सलामती है वो मेरे पास नहीं, मेरे पास मुख्तलिफ है। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी सलामती दिए जद। बंदा पूछे सलामती दूजियां दी ते तेरे वाली च फर्क है? आपने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सलामती देता। पता क्या इंसानों के पास जो सलामती है, इंसानों के पास जो सलामती है ना, कहां से आती है? इनके पास 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 असले के जोर से, ताकत से। नंबर 1 असले के जोर से सलामती। आप कहते हैं सलामती, ये सिक्योरिटी ये जो होती है सलामती, यानी अपनी ताकत के जोर से, असले के जोर से, और खास तौर पर अपना ये जो ताकत होती है इसके जोर से। और पता क्या होता है, जिन्ना ये समझते हैं असला मसले का हल है, असले में मसले का हल है, ये समझते हैं बदले में मसले का हल है, असले में मसले का हल है। इसलिए ये असले और बदले में मसले का हल ढूंढते हैं। उसने कहा नहीं, मेरी सलामती जो मैं देता हूं ये फर्क है। ये असले और मसले, असले और बदले ये मसले का हल नहीं होते। फिर मैं कह रहा हूं बदले और असले, असला और बदला ये दोनों मसले का हल नहीं। ये भी खत्म हो जाए, जितना मर्जी असला बना लो आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहेगा, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर दूसरा पुरअमन बकाए बाहमी से, लो जी तुसी सानू ना छेड़ो असी तुहानू नहीं छेड़ते, ये वाला पुरअमन बकाए बाहमी। आप हमारा एहतराम करो हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, ये पुरअमन बमा। ये दूसरा तरीका इंसानों का जो वो हासिल करते हैं अमन। और पता क्या करते हैं, खुद ही उसकी मुखालफत भी करते हैं, खुद ही उसकी मुखालफत भी करते हैं। पहले समझौता भी कर लेते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ अमन में रहेंगे, फिर वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने थोड़ा सा वायोलेट किया तो दूसरा फिर मुआफ नहीं करता, फिर मुआफ नहीं करता। और खास तौर पर तीसरा, जो बे थोड़ा बहुत खुदा परस्ती और थोड़ा बहुत अपनी पारसाई से हासिल करता है दिल का चैन, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अरे कोई चीज खरीदी वो नाकाम निकल आई, अमन डिस्टर्ब हो गया, अंदर का अमन डिस्टर्ब हो गया। अरे ये क्या दुहाना खरीदिया, वो भी कच्चा निकलिया, लोग गुस्सा चढ़ गया, ये गुस्सा आ गया। उसने कोई चीज खरीदी, खरबूजा खरीदा, मीठा नहीं निकला, गुस्सा चढ़ गया। अरे ये किसी को उसके बात नहीं मानी, गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा हर वक्त इधर पड़ा हुआ है। असल सारा प्रॉब्लम गुस्से का है, सारा प्रॉब्लम क्या है? गुस्से का। इसीलिए ये जितना मर्जी भी पारसाई रखे, उसका गुस्सा उसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन क्यों कहता था कि तुम्हारी सलामती नहीं, वो जो मैं लेकर आया हूं। पता है क्या? वो इसलिए कि
کہ وہ سلامتی اگر تم کوڑے ماروگے, اگر تم کیل ٹھونکوگے, اگر مسلوب کرو گے, پھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی, پھر بھی کہے گا ابا ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ سلامتی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتی, کوئی طاقت ڈسٹرب نہیں کر سکتی. اسی لیے کہا جو میں سلامتی تمہیں دیتا ہوں, وہ سلامتی جو میں تمہیں دیتا ہوں, اس لیے اس نے یوحنا کی انجیل میں کہا میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں, میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. کوئی چیز دنیا کی تمہاری سلامتی ڈسٹرب نہیں کر سکے گی, کوئی سلامتی تمہاری ڈسٹرب نہیں کر سکے گی. آپ کو پتا ہے, ارے بھائی نقطہ بہت سمجھنے والا. یونس نبی آپ کو پتا ہے نینوا کو بھیجے گئے, نہیں جاتے تھے, بھاگ گئے, اور دریا میں وہ جو رستے کا سمندر, ادھر مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رات رہے کہ نہیں رہے. اور پھر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے دعائیں کرتے تھے, بڑی بڑی خوبصورت دعائیں ہے, اگر وہ پڑھو تو بہت وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگی کہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر کیسے دعا کی جاتی ہے اور دعا ہوتی کیا ہے. اصل میں وہ سیکھنے والی چیز ہے, آپ ضرور پڑھیے ایک دفعہ. اور جب مچھلی نے اگل دیا تو سمجھتا تھا کہ اب تو خلاصی ہو گئے, لیکن وہی خدا دوبارہ جاؤ نینوا کی طرف. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب جانا ہی پڑے گا. گیا اور 40 دن رات نینوا کی گلیوں میں وہ گھومتے تھے, اور صرف 3 دن بشارت و منادی کی. بشارت تو نہیں تھی, بس غصے میں کر رہے تھے کہ 40 دنوں کے اندر نینوا تباہ ہو جائے. یہی تھا, 40 دنوں کے اندر نینوا تباہ ہو جائے. گزر گئے دن, لیکن ریاکشن یہ ہوا, لوگوں نے جلدی توبہ کی, روزے رکھے, ٹوڑ لیا, خاک میں سر میں ڈال لے, اور سارے یہ جتنے بھی ادھر کے بادشاہ سمیت سارے لوگ توبہ کر. اور اسرائیلی تو نہیں, لیکن سوچتے ہیں کہ خدا معاف کرنے والا. اب یونس ناراض ہو گئے, ناراض ہو کر, یار یہ اس کو کیا کیا ہوا ہے, اس کو ہیلو, اس کو یہ بہت کریں. اچھا, یہ وہ سمجھتا ہے, ناراض ہو گیا کہ سانو آکھیا لوکاں دے اندر منادی کرو کہ تسی تباہ ہو جاؤ گے, انہیں تباہ ہی نہیں کیتا. ارے بھائی تباہ کرنا ہوتا تو یار یہ بہت خراب کر رہے. تباہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں. تباہی کرنی ہوتی تو پھر آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تباہی آپ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ تباہی کے لیے آپ کو بھیجا جائے. تباہی تو آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بچانا چاہتا ہوں. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بچانا چاہتا ہوں. اگر میرا مقصد صرف تباہ کرنا ہو تو پھر آپ کو صاحب بھیجنے کی ضرورت نہیں. اس لیے جب کیا ہوا کہ جب یہ ناراض ہے تو پھر خدا نے ارنڈ کا پودا اگایا اس کے سر پہ تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے. اور کیا ہوا, ایک ہی رات میں اگا, ایک ہی رات میں دوسری میں سوکھ گیا. تو پھر دھوپ لگی اور تکلیف ہوئی, اور کہنے لگا اس سے بہتر ہے خدایا مینوں موت ہی دے چھڑ. بس یہ جو معافی کو نہیں مانتے کہ خدا معاف کرنے والا ہے, یہ دوسری طرف بہت جلدی جاتے ہیں, معاف کر دیو. یہ نہیں کہیں گے, یہ کہیں گے مینوں موت آ جائے تے چنگی, ہر گل تے مینوں موت آ جائے تے چنگی, مینوں ادھر موت ہی آ جائے تے چنگی. بس یہ ہوا. اور پتہ کیا ہوتا ہے, سنیے, خدا جب ارنڈ کا پودا سوکھ گیا تو کہنے لگے یونس کیا تیرا غصہ روا ہے, کیا غصہ واجب ہے؟ اندھا ہو اتھوں تک ٹھیک ہے کہ موت دے چھڑ بس. اب غصہ کیوں؟ تو انہوں نے تباہ کیوں نہیں کیتا؟ آپ نے ان کو تباہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن سلامتی کے خدا کے پاس کوئی اور ہے. کہنے لگے بس
हैरानगी की बात है, बाइबल की कोई किताब भी इस तरह खत्म नहीं होती जिस तरह यह किताब का खात्मा किया गया। इस किताब का एंड ही बड़ा अजीब है। पता क्या कहा? यूनस, तू एक अरंड के पौधे के लिए इतना गुस्से में है, लेकिन मेरी बात सुन, ये शहर, ये नैनवा, जिसके अंदर जानवरों के अलावा, मवेशियों के अलावा, बड़े जानदारों के अलावा 1,20,000 इंसान है। कितने? 1,20,000 इंसान है जो अपने दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते, जिन्होंने पता ही नहीं कि सज्जा केड़ा ते खब्बा केड़ा। अब हैरानगी होती है, यहां किताब बंद हो गई, इधर किताब बंद हो गई। अरे भाई, ये किताब बंद करने का तरीका है? बस कोई ऐसे इंसान जो दाएं और बाएं में फर्क ही नहीं कर सकते, इधर किताब बंद कर दी। पता है क्यों बंद कर दी? अरे यही तो गहरी तमसील है, यही तो तमसील है। जिनकी समझ में आ गई वो पहुंच जाएंगे, जिनकी ना समझ में आई वो रह जाएंगे। तमसील क्या है? अरे यूनस की सारी कहानी में तमसील क्या दी गई है कि खुदा वकालत करता है इन इंसानों की, वकालत, खुद वकालत करता है। दस मैं इन्हों क्यों ना बचावा, दस मैं इन्हों क्यों ना बचावा, ये वकालत करता है, क्योंकि ये नहीं जानते कि की करते हैं। इन्हों सज्जे खब्बे का नहीं पता, इन्हों किसी गल का नहीं पता। अरे तमसील ये है कि आज तमसील में बात की है कि दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में एक दिन कलवरी पे खड़े होकर ये कहेगा, अब्बा इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हों पता ही नहीं। ऐसे माफ करो कि इन्होंने गुनाह किया ही नहीं। बोलो खुदावंद यसुम सीदी, बोलो खुदावंद यसुम सीदी। इनको ऐसे मुआफ करो गोया इन्होंने गुनाह किया ही नहीं। मत यह हुए कि मुआफ कीता, लेकिन तारीख में यह रहेगा इन्होंने गुनाह कीता ते तू मुआफ कीता। इन्होंने गुनाह किया और तूने मुआफ किया नहीं। ये ना हो कि पहले गुनाहगार ठहराऊं और फिर मुआफ कर ना, ये किया। ऐसे मुआफ करो, ऐसे मुआफ करो, कभी थे ही नहीं, इनके हिस्से में ना आए, कभी थे ही नहीं, कभी गुनाहगार थे ही नहीं। वाह, सिरे से जड़ों से पाकर। और इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी ये जो है ना खास तौर पर तालीम, उस पर अमल करते हो। आपको पता है, खुद तालीम दी कि जब तू कुर्बानगाह पर जाए, जब तू कुर्बानगाह पर जाए तो वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी नजर उधर ही छोड़ दे। वाह, सुलह के बगैर, मुआफी के बगैर कोई इबादत भी नहीं, कोई इबादत भी नहीं। अगर करोगे तो झूठी करोगे, अगर करोगे तो झूठी करोगे। इसीलिए उसने कहा, अरे भाई मैं आपको बताऊं, यह शरीयत सजा तक ले जाती है, लेकिन फजल चुंगल से छुड़ा लेता है। इसलिए तुम फजल के छुड़ाए हुए हो, तुम शरीयत के चुंगल से छुड़ाए। इसलिए शरीयत सजा तक, ला सिर्फ सजा तक जाएगा और अदालत तक जाएगा। और अदालत क्या करेगी? अरे तुम्हारी अदालत, तुम्हारा इंसाफ क्या है? तुम्हारी अदालत क्या करती है? अरे भाई बदला ही तो है, और क्या है? उसने कत्ल किया, बदले में बदला करो। हाँ जी, अदालत बड़ा इंसाफ करे, क्या करेगी? इसे मार दो, उसे फांसी चढ़ा दो, उसे उम्र कैद कर दो, उसे सजा दो। अरे तेरी अदालत इतनी है, बदला ही लेना और किए। बड़ी सुप्रीम कोर्ट भी हो तो बड़ा इंसाफ करेगी, यही करेगी कि इसने जो कुछ किया इसके साथ भी वैसा ही करो, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। और यही है तुम्हारी अदालत, तुम्हारा इंसाफ यही है। इसलिए उसने कहा, मेरा इंसाफ, मेरी अदालत वो नहीं जो तुम्हारी है, ये मेरे अब्बा की अदालत है, और इसके अंदर माफी चलती है, इसके अंदर मुआफ किया जाता है। क्योंकि किस्सा, और आपको पता है, बदला कभी खत्म नहीं करता गुस्से को, बदला गुस्से को खत्म नहीं करता, मुआफी गुस्से को खत्म करती है, मुआफी गुस्से को। इसलिए जिनके यहां रूह बसता है वो मुआफ कर सकते हैं, जिनके यहां रूह बसता है वो मुआफ कर सकते हैं, वो मुआफ करते भी हैं। और जिनके यहां रूह नहीं बसता वो बदला लेना चाहते हैं, जिनके यहां रूह नहीं बसता वो बदला लेना चाहते हैं। और जिनके यहां रूह बसता है वो बांट देते हैं, जिनके यहां रूह नहीं बसता वो सगीरा अंदोजी करना चाहते हैं, वो समेट लेना चाहते हैं। इसलिए ये बात है कि रूह तुम्हारे अंदर बसता है, जिसका रूह बसा हुआ है वो मुआफ करने वाला है। इसलिए बीबी जिसका नाम पाकमा मरियम है, वो मुआफ करने वाले शहजादे
अमन के शहजादे और दूसरों के पर ये निछावर करने वाले शहजादे, क्योंकि उसको पता है, उसने पेश किया कि अब्बा आपको पता है जो हिस्सा मुझे आता है मुझे दे, लेकर चला गया, उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया। लेकिन उड़ाने के बाद परदेश में याद आया कि मेरे बाप के घर में, मेरे अब्बे के घर में बहुत से नौकरों को बड़ी अयाशी होती है, बड़ा कुछ खाने को मिलता है, मुझे यहाँ उतना भी नहीं मिलता जो सुअर बचा कर रखते हैं। इसलिए फिर याद आया अब्बा, और अब्बा के लिए वापसी, फिर होश आ गया वापस आने के लिए। और यहां पर है फोकल पॉइंट, अरे भाई हमारे पुत्र हमारे बेटियां अगर गलती करें तो हम क्या करते हैं, उनको 100 दफा याद करवाते हैं, 100 दफा याद करवाते हैं, कहते हैं तू ये गलती क्यों की थी, तू ये काम कीता ही क्यों, तू इस तरह का काम क्यों कीता, आपने ये क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ये कैसा बाप हर रोज राह देखता है किधर से मेरे बेटे आते हैं, किधर से मेरे बेटियां बेटे आते हैं, राह देखता है, खुद राह देख देख कर अक्खां थक गई ने, बस ये देखता रहता है। और वापस आया, ये मोहब्बत खींच के लाती है। अरे भाई मैं आपको बताऊं, खुदा ने अगर अपने मंसूबे में शुरू से मुआफी ना रखी होती तो आज हम भी उसकी इबादत करने के लायक भी ना होते। आज हम आ गए हैं क्योंकि हमारे लिए उसने मुआफी रखी हुई है, तब भी उसके सामने आ गए हैं। इसीलिए हमारी इबादत भी सलामती से शुरू होती है। आपको कहा गया ना, सलामती खुदावन की आपके साथ हो, और जब इबादत खत्म होगी तो फिर भी कहा जाएगा सलामती से जाओ, क्योंकि मसीह का शुरू भी सलामती है, उसकी तकमील भी सलामती है। इसलिए उसने कहा, देखो जब ये बेटा वापस आता है तो आकर कहना शुरू करता है, कहता है मैं अब्बा इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र खुआऊं, मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारा बेटा बन जाऊं, लेकिन अब्बा मुझे अपने नौकरों में से किसी की मानिंद रख लो और मैं तुम्हारे ये वो अपनी बयानबाजी करता है और रोता जाता है। लेकिन अब्बा क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं कहता सुना ओदो क्यों जान दी सौड़ सी, सुना ओदो किथे छोटा है सब कुछ, सुना हुण क्यों वापस दा चेता है, सुना वो इन्ना सब कुछ अपना लै गया सा, किथे गवाए हैं, हुण ते तू कख नहीं रह गया, कोई लफ्ज नहीं कहता। अरे तू बाप के हजूर आए, तुझे एक दफा शर्मिंदा भी नहीं करेगा, शर्मिंदा करने की बजाय जिंदा कर देगा, क्योंकि उसका काम जिंदा करना है, शर्मिंदा करना है। खुदावंद यीशु मसीह दी। हम शर्मिंदा करते हैं, वो नहीं शर्मिंदा करता। इसलिए जब वापस आया तो पता क्या करता है, वो कहता जाता है मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये करता जाता है। और वो पता क्या कहता है, जाओ मेरे बेटे के लिए अच्छी पोशाक लेकर आओ, मेरे बेटे के लिए अच्छी पोशाक लेकर आओ, फिर मेरे बेटे के लिए एक अंगूठी भी लेकर आओ, अच्छे जूते लेकर आओ, बेहतरीन जूते लेकर आओ। साथ ये भी कहता है अरे पला हुआ बछड़ा भी ज़िबा कर दो, अच्छी खासी मजल, अच्छा खासा जश्न मनाओ। वाह, बंदा हैरान होता है क्या करते हो, क्यों, पता है क्या, उसको पता है तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा वापस आया, हकीकत में मेरा शहजादा वापस आया है, और ये मेरा शहजादा है, जब वापस आएगा शहजादा ही होगा। हम ये नहीं देखते कि कितना गुनाह करके आया, कितना खो आया है, हम ये देखते हैं वो खोया हुआ था दोबारा मिल गया है, और खुशी करना हम पे वाजिब। इसलिए अगर उसका ढूंढना तुझे समझ आ जाए तो खुद ही दिल करे कि कभी कभी गुम भी हो जाऊं, ताकि मुझे फिर तलाश करे, मुझे फिर ढूंढ ले, मुझे फिर सलामती दे दे, मुझे फिर खुले बाजुओं के साथ। अरे ये वो बीबी है, ये वो बीबी है जिसके बेटे ने, जिसके पेट के फल ने, अरे हव्वा ने अदन में फल पेश किया तो मसला पेश कर दिया, अदन में फल पेश किया तो मसला पेश कर दिया, मसला पेश कर दिया। मरियम ने पेट का फल पेश कर दिया तो मसले का हल पेश कर दिया, पेट का फल पेश कर दिया तो मसले का हल पेश कर दिया। मैं समझता हूं, मैंने लिखा वो अखियां दे विच सुपने लैके अख दी लाली लई फिरेगा, अखियां दे विच सुपने लैके अख दी लाली लई फिरेगा, पैरां दे विच बेड़ी पा के खस्ता हाली लई फिरेगा, मरियम बाज की बागे अंदरों सखनी डाली लई फिरेगा, तो दर दर जाया दर्द नहीं जाना, एवें हथ सवाली लई फिरेगा,
असद मरियम पाक दा पलड़ा फड़ लै और नहीं ते मटके खाली लई फिरेगा, नहीं ते मटके खाली लई फिरेगा। ये वो खाली मटके होते हैं जिनमें माफी का कोई रस नहीं होता, जिनमें माफी की कोई मैं नहीं होती, जिनमें माफी का कोई पीने का वो रस नहीं होता। इसलिए ये है वो मैं जो उसने पिलाई है। और कौन सी? ये सुनो, जब सलीब पे था तो सलीब के नीचे थी, सलीब के वो था, सलीब के नीचे थी। अब देखो, तुमने शुरू में देखा पेट का फल, आज भी उसके पेट का फल देखिए। अरे रूट और फ्रूट का रिश्ता तो देख, रूट और फ्रूट का रिश्ता देख। अरे सलीब के नीचे जो खड़ी है वो रूट है, वो जड़ है, और जो ऊपर है वो फल है। अरे जैसी रूट है वैसा फल है, इसलिए जैसी जड़ है वैसा फल है। अरे तूने दरख्त ही ऐसा पत्त दिया, तूने फल ही ऐसा दिया, इसलिए तो अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, अम्मा अपने पुत्र से पहचानी जाती है। इसलिए अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो समझोगे कि जड़ों के जो सलीब के नीचे है वो जड़ है, जो ऊपर है वो फल है, जो ऊपर है वो फल है। और फल क्या है? अरे जो मिला है वो तो सलीब पर से मिला, जो सलीब पर से मिला है। हमने अभी तक सिर्फ देखा है दुख दुख दुख। अरे जो मिला उसको देख ले, तुझे पता चल जाए कि जो मिला सलीब से मिला, जो मिला सलीब से मिला। इसलिए उसने तालीम दी कि जब तू कुर्बान गाह पर जाए तो अपनी नजर वहां छोड़, अगर तुझे याद है तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत। इसलिए जब सलीब पे था, अपनी जान का नजराना पेश कर रहा था, तो पता क्या करता है? वाह, ये कमाल कर दिया कि मैं कैसे नजराना पेश कर दूं जब तक इनको माफ ना कर दूं, क्योंकि इनको माफ करने से नजर कबूल होती है। इसीलिए यही तालीम दी थी कि पहले माफ करो फिर अपना नजराना पेश करो। इसलिए सलीब पर से क्या मिला है? सलीब पर से क्या मिला है? आप जानते हैं सलीब पर से क्या मिला है? अरे 3 सबसे बड़े तोहफे मिले, सलीब पर से मिले 3 तोहफे। नंबर 1 मुआफी, नंबर 1 मुआफी, सबसे बड़ा तोहफा मुआफी। भाई पहला तोहफा जो मिला मुआफी, अब्बा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते, पहला। और दूसरा मुआफी के बाद बहिश्त, दूसरा बड़ा तोहफा बहिश्त, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो, तुम दोजख बनाओ। अरे दुनिया वालों, तुम दोजख बनाओ, नीचे से सारे जहर इकट्ठे कर लो, सारा ये क्या कहते पतमिली में ये जहर इकट्ठे कर लो, और तुम सारे ताने इकट्ठे कर लो, कील इकट्ठे कर लो, सलीब इकट्ठी कर लो और तन्हा लटका दो, तुम दोजख बनाओ। आओ हम सलीब पर बताते हैं कि बहिश्त बनाई कैसे जाती है। हमसे फन सीखिए, हमें जहर को शहद बनाना आता है, हमें जहर को शहद बनाना आता है, हमसे सीखिए। इसलिए उसने सलीब पर बहिश्त बना के दिखाई, बहिश्त बना के दिखाई है, बना के दी है। और उसको पता है, मैं आपको बताऊं, जान देने से पहले तीसरा बड़ा गिफ्ट, जान देने से पहले उसको पता है, उसको ने देखा कि इस जान देने से पहले एक जान नीचे भी खड़ी है, एक जान नीचे भी। अरे मां जान नहीं तो और क्या है? अरे नीचे भी जान खड़ी है, और कहा इस जान देने से पहले ये जान भी तुम्हें देता हूं, ये जान जो नीचे खड़ी है ये भी तुम्हें देता हूं। और कहा अम्मा ये तेरे बच्चे हैं, और उनको कहा ये तुम्हारी अम्मा है। इसलिए ये बताया कि ये गिफ्ट जो सलीब पर से मिले हैं, ये उस अम्मा जो सलामती देने वाली है, जो मुआफी देने वाली है, जो अपने दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अरे अभी तक पूछ रहे हैं, अभी तक कहते हैं कि सुनो, अभी तक कहते हैं अरे भाई उन्हें अपनी अम्मा नु अम्मा नहीं आख्या, हाँ अम्मा नहीं आख्या। अभी तक पूछ रहे हैं अरे अम्मा नहीं कहा। अरे यूहन्ना ये 19 ये उधर जो मसलूबियत का वाक़या पढ़ के देख और तुझे पता चले अम्मा क्या होती है। पता क्या लिखा? अरे 5 दफा अम्मा लिखा उधर। कितनी दफा? 5 दफा अम्मा लिखा। 1 आयत और 5 दफा अम्मा, 2 आयतें और 5 दफा अम्मा। सिर्फ सलीब के नीचे ये आयत पढ़ के देखना। पता क्या लिखा? सलीब के नीचे उसकी मां खड़ी। क्या लिखा? सलीब के नीचे उसकी मां खड़ी, एक उसकी मां की बहन खड़ी, मां की बहन खड़ी, 2, हाँ जी 2। और सुनो हैरान हो जाओगे। या सलीब के नीचे फिर कहा उसकी मां की बहन 2 दफा, फिर कहा यीशु ने अपनी अम्मा को देखा
दो 3 हो गया, फिर रखा, अपनी माँ से कहा 4, और फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ। हैरानगी की बात है, और 5 दफा तो सलीब के नीचे ही उसने अम्मा लिख दिया। जिसने 5 दफा अम्मा लिखा उसको अम्मा कहने दिया। यह सिर्फ तेरी समझ की बात है, यह तेरे दर्द की बात है, तुझे ना समझ आई। मैंने लिखा निशान मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है, निशान सफर मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है, जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या क्या मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला है, क्या क्या मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला है। असद खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है, खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। इसलिए मैं क्या क्या बताऊं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ सलीब पर से दिया गया है अगर तेरी समझ में आ जाए तो ये 5 दफा अम्मा लिखा है सलीब के नीचे, और सलीब के ऊपर जख्म कितने हैं? 5 हैं। जख्म कितने हैं? 5 है। अरे सलीब के ऊपर जो जख्म है वो 5 है, नीचे जो मां लिखा वो कितना? 5 है। अरे हर जख्म के अंदर एक मां बैठी है और तेरे लिए और हर जख्म के अंदर अम्मा बैठी हुई है। अगर तू पहचान सके तो तेरी जगह भी उधर है, तेरी अम्मा भी उधर है और तेरा मकाम भी उधर है। बोलो मुकस्सम मरियम दे नादी, बोलो मुकस्सम मरियम दे नादी। 5 दफा लिखा, 5 दफा, और जख्म भी 5 है। और हर जख्म को देखो तो अम्मा को देखो, तुम्हें पता चले कि उसके जख्म और उसके 2 नहीं है, एक ही है। वो ऊपर सलीब पर है, वो नीचे सलीब पर है, वो नीचे सलीब पर है। इसलिए कुछ नीचे सलीब पर होते हैं, कुछ ऊपर सलीब पर होते हैं। यह देखने वाली बात है। अगर गौर से देख सको तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे सलीब के नीचे बस 2 ही नाम है। पता क्या कैसे खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। सलीब के पास जो नाम लिखेगा वो लिखा हलफाई की बीवी या वो दूसरे की बीवी, या फिर जिसके नाम मरियम नहीं है उनका रिश्ता लिख दिया, लेकिन जिनके नाम मरियम है उनका नाम लिख दिया, उनका नाम लिख दिया और लिखा कि वो दूसरी मरियम, वो पहली मरियम और उसकी बीवी जिसका नाम मरियम। अरे आप सलीब के नीचे पढ़ोगे आयते तो पता चलेगा। सलीब पता है इंजील वाले क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अरे सलीब के नीचे अगर कोई नाम भी जचता है तो मरियम ही जचता है और कोई नाम भी नहीं जचता। इसलिए आप चारों को पढ़कर देखना, अरे सलीब के नीचे जब भी नाम लिखा जाएगा मरियम ही लिखा होगा, मरियम लिखा होगा। ये सिर्फ तेरे देखनी, तेरी नजर की बात है। अगर वो तेरी नजर खुदा करे वैसी हो जो उसके देखने की थी, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर तुम्हें जकरिया की नजर से देखिए, फिर तुम एलिसाबात की नजर से देखिए, और फिर तुम यूहन्ना की नजर से देखिए, फिर तुम शमऊन की नजर से देखिए, और फिर तुम हन्ना की नजर से देखिए। जब तुम इनकी नजर से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने लिखा मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। एलिसाबात की मानिंद मुलाकात में लिखे जाओगे, एलिसाबात की मानिंद मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में आओ, मरियम के हाथों में आओ, खुदा के हाथ में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे, किताबे हयात में लिखे जाओगे। मैं अपनी बात को वाइंड अप करते हुए मैं सिर्फ आपको एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आता है, फितरी तौर पर आता है। बस गुस्से का इलाज भी है, गुस्से का इलाज भी है। जब भी गुस्सा आए कुछ नहीं करना, गुस्सा आए तो कुछ नहीं करना, क्योंकि गुस्सा सबसे बड़ी बात मार देता है, क्योंकि उसे होश नहीं रहती कि मैं गुस्से में हूं। बस आपका काम है एक दफा होश में आना। गुस्सा आ गया तो सिर्फ और सिर्फ ये कहने अपने आप से, हाँ मुझे पता है मैं गुस्से में हूं, हाँ मुझे पता है कि मैं गुस्से में। बस एक जुमला अपने आप से कहिएगा,
गुस्सा पता ही नहीं चलेगा किधर गया। यह इलाज है, यह नफ्सियाती इलाज भी है और यह रूहानी इलाज भी है। सिर्फ और सिर्फ वो जो शऊर में होते हैं, वो जो इनलाइटनमेंट जिन तक होती है, वो वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो जो औलिया होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसलिए मुआफ सभी नहीं कर सकते, ये जो खुदा के मुकद्दसीन होते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। इसीलिए सलीब के नीचे खड़े होने और सलीब पर से मुआफी बहाने, ये उनको सिर्फ शर्फ हासिल होता है जिनके यहाँ खुदा बसता है, जिनके अंदर भी खुदा, बाहर भी खुदा। इसलिए मैंने कहा, जब आपको गुस्सा आए कभी भी सिर्फ ये कहना है, हाँ मुझे पता है मैं गुस्से में हूं, मुझे पता है कि मैं, कहिए मुझे पता है कि मैं गुस्से में हूं, बस इतना कहना है। फिर आपने कुछ नहीं करना, आपको पता ही नहीं चलेगा गुस्सा किधर गया, बस खुद चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ गुस्से में शऊर आ गया कि मैं गुस्से में हूं, तो गुस्सा भाग जाएगा। लेकिन अगर शऊर ना आया तो गुस्सा तुम डोमिनेंट रहेगा, वो कभी फिर तुम्हारी खलासी नहीं करेगा। इसलिए उसने पूछा कितनी दफा माफ करूं? 7 दफा। उसने कहा नहीं, 7 के 70 दफा माफ करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो कुछ ढूंढ रही है, जो कुछ जिसकी तलाश में है, वो उसको नहीं मिलेगा जब तक तुम माफी नहीं दोगे, तुम माफ का इंजील नहीं सुनाओगे। क्योंकि क्रिश्चियन और किसी वजह से तो क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन माफी के बगैर क्रिश्चियन नहीं हो सकता, वो मसीही नहीं हो सकता। इसलिए कि ये उसका हुस्न है, ये उसकी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसने माफ नहीं किया वो बुज़दिल है, माफ नहीं किया तो बुज़दिल है, माफ नहीं किया तो इसने बिल्कुल, ये तो बुज़दिल है, इसने क्या करना है, ओ जरा बदला नहीं ला सकता, वो भी कोई बंदा है। अरे भाई, दुनिया एक और वैल्यू के साथ चलती है, तुमने और दैन खाना है। अरे तुम्हारे लिए बहादुर वो नहीं जो बदला लेता है, तुम्हारे लिए बहादुर वो है जो मुआफ कर सकता है। जितना मुआफ कर सकता है उतना बड़ा बहादुर है। इसलिए मेरी ये इल्तजा है कि जब तुम बहादुर बनना चाहते हो, मसीह के बहादुर, तो फिर मुआफ कीजिए। फिर तुम्हारे पास ये कैपेसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक ताकत तुम्हारे पास होगी कि दुनिया को नया हुस्न दे दो, नया रंग दे दो, नया गीत दे दो। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब जकरिया हैकल से लौट के आए थे, जकरिया हैकल से लौट के आए थे, तो इस पर मैं बंद कर दूं। हैकल से लौट के आए थे तो खुशखबरी मिली थी, फरिश्ते ने खुशखबरी दी थी, तेरे यहाँ बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और फिर वो बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा मिशन उसके सपुर्द, सारा होगा। लेकिन यूहन्ना जकरिया कहते हैं ये किवें हो सकता है, किवें हो सकता है? फरिश्ते ने कहा तूने यकीन नहीं किया, इसलिए गूंगा रहेगा, जब तक हो नहीं जाता गूंगा रहोगे, गूंगे बन जाओगे। क्या होगा? गूंगे बन जाओगे। और वाकई गूंगा हो गया। लेकिन 6 माह के बाद वही फरिश्ता जब मरियम के पास आता है तो फिर हैरानगी होती है, वो सलाम भी करता है और फिर पूछा जाता है ये कैसा सलाम है, फिर जवाब देता है। यहां नहीं कहता गूंगे हो जाओ, यहां नहीं कहता मरियम आप गूंगे हो जाओ, नहीं, फिर दोबारा वजाहत करता है, वजाहत जवाब देता है, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, इसीलिए वो कुल मौलूद हक ताला का बेटा, ये सारा कुछ कहता है। फिर वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर्द से नावाकिफ हूं। फिर जवाब, अरे कितने सवाल करे, फिर जवाब। हैरानगी होती है, जकरिया सवाल करे तो उसे गूंगा कर दो, अरे मरियम सवाल करे तो तफसीलों से जवाब देते हो, मरियम सवाल करे तो तफसीलों से जवाब देते हो, अरे जकरिया सवाल करे तो उसे गूंगा कर देते हो। पता है क्यों? पता है क्यों? कहा अरे ये जिब्राइल की सुनिए, अरे अगर जकरिया सवाल करे तो उसे जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने पहले बड़े मॉडल बना रखे हैं, उसके लिए पहले नमूने बना रखे हैं। क्या उससे पहले बूढ़ों को हमने औलाद नहीं दी? क्या इब्राहिम और सारा को औलाद नहीं दी? क्या हमने पहले बूढ़ों को मौजूदाना तौर पर बच्चे नहीं दिए? वो तारीख पढ़ के देख ले, उसके लिए पहले से नमूने मौजूद हैं। इसलिए उसको गौर खोज करना चाहिए, चुप रह के गौर खोज करना चाहिए। हमने जवाब दे दिया, पहले जैसे दे दिया, उसको जवाब नहीं देना। लेकिन मरियम 100 सवाल करे 100 जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि एदे वर्गा पहला सब बनाया ही कोई नहीं, ऐसी कोई पहले हुई ही नहीं है, ऐसे कोई पहले
हुई नहीं है। इसीलिए अरे भाई यहां जवाब देना पड़ता है, यहां जवाब देना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा, अरे जकरिया खुदा के घर से आया, फरिश्ता खुशखबरी भी दी, और फिर